Students, in our last lecture we have studied till this page of our book which is mentioned here. If I'm just talking about the next page, which I'm just enlarging here, you can see here what is just mentioned here on this page. Then you can see here in this page this diagram of microorganism which is representing here virus is mentioned here. Okay. The main thing which we notice about this virus is that this virus is linked between living and non-living. Why it is called as a link between living and non-living? मतलब sometimes it is living and sometimes it behaves as a non-living. कि इसमें जान नहीं है. It is said so because in the case of virus, when it is kept over the surface, suppose it is surface and here virus is kept, at that time it will behave as a non-living. जैसे इसमें कोई भी reaction, कोई भी activity नहीं होगी. But जैसे ही ये किसी सेल के या बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा वैसे ही ये लिविंग की तरह बिहेव करेगा, यानी डिवाइड करेगा. इसके अंदर कुछ प्रोसेस होंगे जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. ऑल द एक्टिविटीज विल अकर इनसाइड इट. दैट्स व्हाई इट इज ऑन द सरफेस इट इज नॉन लिविंग. व्हेन इट एंटर्स इनसाइड द सेल इट बिहेव्स लाइक लिविंग. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किस कंपोनेंट से बना होता है? प्रोटीन से बना होता है. वायरस के अंदर, यानी अगर इस प्रोटीन कोड के अंदर की बात करें तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. जेनेटिक मटेरियल मतलब जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि हाउ डू द ऑर्गेनिज्म विल लुक, हाउ डू इट विल रिएक्ट, व्हाट विल बी द फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. तो वो फीचर्स होते हैं. तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या इसमें क्या होगा? इसका आरएनए होगा. These two things we just observe in the virus. So it would be having protein coat outside और अंदर DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है. Now the question arises, where do the microorganisms are found? ये सारे microorganisms रहते कहाँ पे हैं? तो if I'm just talking about where do these microorganisms live, so these microorganisms live in a very different kind of areas. What are these different kind of areas? Where do the microorganisms live? So you can just read it out here in this portion. They can live in desert, they can live in ice cold water, they can live on the hot water spring. That means where the water is at the boiling temperature. Even in our body, inside our body also microorganisms live. Like example, if I'm just giving you, I think you have heard about the disease TB, that is tuberculosis. इसमें क्या होगा? एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई. वो बैक्टीरिया इंसान को इन्फेक्ट कर देता है. अब बताओ, बैक्टीरिया से वी आर गेटिंग इन्फेक्टेड एंड बैक्टीरिया इज लिविंग इनसाइड अवर बॉडी. सो दैट इज वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. इट लिव्स इन द डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया, डिफरेंट काइंड ऑफ एटमोसफियर एंड इवन डर्टी वाटर ऑल्सो. Like I have shared the slide. So in dirty water also certain microorganisms like amoeba and other bacteria, these can be found. And over the food stuffs also, I think you all have seen the microorganisms are found there. Microorganisms and us. The next heading which deals here is this microorganisms and us. That means what is the relationship of ourself with that of the microorganism, that is discussed here. You can now you have to see here friendly microorganisms. अब microorganism हमारे साथ है. They can be our friend, यानी हमें फ़ायदा पहुँचाएंगे, और they can be our foe, यानी कि they can harm us, हमें नुकसान पहुँचाएंगे. So the very first point which is mentioned here, that is the microorganisms friendly for us. Friendly मतलब just imagine your friends. आपका friend क्या करता है? They help you, they share the things with you, they protect you, you enjoy with them. आप उनके साथ enjoy करते हो कि वो बहुत अच्छे होते हैं, आपका साथ देते हैं. तो इसी तरह जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हमें क्या करेंगे? वो हमें कोई ना कोई प्रॉफिट देंगे, यानी हमें फ़ायदा पहुँचाएंगे. लाइक इट इज़ रिटन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस. अब अल्कोहल, यू ऑल नो व्हाट इज़ अल्कोहल. इट इज़ यूज्ड इन वेरियस मेडिसिन्स and for the different purpose alcohol is used. So that is just synthesized with the help of microorganisms only. इसके अलावा अगर हम बात करें तो certain microorganisms add fertility to the soil. मतलब soil में grow करेंगे, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं, और वो soil के अंदर nutrients को add करेंगे. कैसे? वो atmosphere यानी
एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वो कन्वर्ट कर देंगे सर्टेन केमिकल्स में और उसको सॉइल में फिक्स कर देते हैं, सॉइल में ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ यूजेस। द नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन हियर, अब इसके लिए यू नीड नॉट टू स्टडी, बस यू हैव टू जस्ट go to your kitchen and ask for the curd. I think you all have seen curd. Curd is made with the help of microorganism which is called bacteria. बैक्टीरिया का नाम भी मेंशन है यहाँ पे। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज lactobacillus. This lactobacillus bacteria helps in the making of curd. And what is the use of curd? Curd can be used for the different purpose, like you can just use it for making different kind of recipes, different kind of food stuffs, and that adds nutrients to our body. Now the next thing which is given, bacteria are also involved in the making of cheese, pickles. बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं केवल कर्ड बनाने के लिए ही यूज़ हो रहा है, जैसे आपने देखा था कर्ड के लिए और ब्रेड के लिए, ब्रेड में भी यूज़ होता है ना ईस्ट, उसके फर्मेंटेशन, ब्रेड को फ्लफ़ी बनाने के लिए ताकि फूल जाए और बहुत जो सॉफ्ट सा लगता है उसके लिए ईस्ट यूज़ होता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, चीज़ बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ होता है, पिकल्स अचार आप जानते हो उसको बनाने के लिए। इस तरीके से अलग अलग फूड स्टफ्स को जिसे आपको बनाने में वो हेल्प करता है। सूजी, आपने रवा इडली बनाई, सूजी से इडली बनाई, उसके इसमें आप कर्ड डालोगे, इट कैन बी मेड। भटूरा बनाते हैं तो आपने देखा होगा मम्मी कर्ड ऐड करती हैं। सो इन दैट वे दीज आर जस्ट एडेड। Students, the activity which is mentioned here in this speech, like here I am just mentioning this activity, these all activities you all have to perform at your home. Like here it is given, you have to take flour जिसको आटा बोलते हैं, then in that you have to add sugar और थोड़ा सा गर्म पानी डालना है। उसको थोड़ी देर के लिए आप रखोगे तो उसमें आप देखोगे कुछ फ्लफीनेस, जैसे नहीं स्वेल कर जाता है तो स्वेल आ जाएगी, मतलब फूला हुआ दिखेगा, ऐसा फ्लफी हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन अराइजेस ऐसा क्यों हो गया है? देन आंसर इज जस्ट रिटन हेयर दैट व्हेन यू हैव गिवन इट मीडियम, आपने कुछ मीडियम ऐड किया ना, शुगर और गर्म पानी डाला और उसमें ईस्ट पाउडर भी डाला था, तो इससे ईस्ट जो होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस मतलब डिवाइड करेगा बहुत फास्टली, और जब डिवाइड करेगा तो उस टाइम पे वो कुछ गैस रिलीज करेगा। व्हाट इज़ दैट गैस? इट इज़ मेंशन हियर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप सोचो ये फ्लोर है, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने की कोशिश कर रही है। अब जिस तरह से गैस यहाँ से निकलेगी, ये क्या करेगी, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस बना देंगे, जिससे वो फ्लोर जो आटा है वो फ्लफी दिखेगा, सॉफ्ट सा दिखेगा। सो दैट इज़ the activity which you all have to do, and then you have to record and send the video to me through your class teacher. I have to see who is the first one. I'll decide the first and the best one for this activity. Then simultaneously you have to do the other activity also, which is mentioned here, like it is given here, take 500 ml beaker filled with the water, पानी मिल जाएगा आपको घर पे, ठीक है। इसमें डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर, शुगर भी आई थिंक घर पे ही होगी। देखो ये सारी चीज़ें आप घर पे ही कर सकते हो, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू द एक्टिविटी। फिर आपने जैसे ही उसमें शुगर ऐड कर दिया, देन व्हाट यू हैव टू ऐड, यू हैव टू ऐड इट इज़ मेंशन अ हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर। ईस्ट पाउडर अगर अवेलेबल हो तो ऐड करिएगा, नहीं अवेलेबल है तो फिर जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ें अगर ईजिली अवेलेबल है तभी करिएगा। नीड नॉट टू गेट पैनिक फॉर इट ईस्ट पाउडर के लिए, बट इफ़ यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी आई वुड लाइक यू टू परफॉर्म इट। तो आपने ईस्ट पाउडर डाल दिया, कीप इट कवर्ड विद द वार्म प्लेस। अब इसको कवर कर दीजिए, थोड़ा सा गर्म प्लेस चाहिए ईस्ट के डिवाइड होने के लिए, तो वहाँ पे रख दो 4 to 5 आवर्स के लिए, 4 से 5 घंटे। देन यू विल फाइंड सर्टेन स्मेल इज कमिंग। ये किस चीज़ की स्मेल है? अब देखो आंसर भी देखो, व्हेन एवर NCERT ये बुक आपको क्वेश्चन पूछता है आंसर भी उसी के नीचे दे देते हैं। सो हियर आंसर इज मेंशन, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज अ शुगर। जो अल्कोहल शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, अल्कोहल, और जो उसकी स्मेल आ रही है वो उसी की है। Now the question arises, what is this process is called as? This process is called as fermentation. That means conversion of sugar into alcohol is called as a fermentation. Who has discovered this process of fermentation? It is mentioned here. Louis Pasteur is a scientist who has discovered the process of fermentation, that is gradual conversion of sugar into alcohol.
This process is called as a fermentation, and he has described it in the year of 1857. Then the next thing which you have to focus, that is the antibodies. Here in antibodies, a simple thing is that एंटी, दूसरा क्या आ गया, बॉडीज. अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज द सेम थिंग इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर क्लास नाइन्थ बायो में एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी बायोटिक्स, सॉरी बच्चों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एंटीबायोटिक्स इट इज, अगेन आई एम राइटिंग इट डाउन, antibiotics. That was written wrong by mistake in the just previously to that. Anti means against. Okay, against मतलब किसी के against में हो रहा है, against T होगा, S नहीं होगा यहाँ पे. Biotics means living organism. किसके against ये work करेगा, living organism के against. यानी antibiotics means certain chemicals or the medicines which will act against the living organism. But here question arises, living organism कौन, all की कोई specific, तो यहाँ पे specific living organism है. which living organism we are talking about here, बैक्टीरिया या disease causing organisms के बारे में बात कर रहे हैं हम. so here bacteria basically is considered here as a antibiotics, यानी अगेंस्ट होगा. ये किसके अगेंस्ट होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सी बात कर रहे हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, विच इज मेंशन्ड हियर ऑल्सो. यू कैन सी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट भी वर्क करेगा. तो दीज मेडिसिन्स आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स. इन द क्लास 9th द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड कि व्हेन एंटीबायोटिक्स किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन वाई डू नॉट दे किल द ह्यूमन्स. तो ये ह्यूमन्स को किल क्यों नहीं करती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया को तो डैमेज पहुंचा दिया, बट ह्यूमन को नहीं डैमेज कर रहे हैं. व्हाट इज द रीज़न फॉर दिस. सो द आंसर फॉर इट इज़ दैट बैक्टीरिया हैज़ सेल वॉल. एक स्ट्रक्चर होता है, आई थिंक प्रोबेबली यू आर नोइंग इट. इफ यू आर नॉट नोइंग इट, आई विल जस्ट कवर इट इन अनदर लेक्चर. सो बैक्टीरिया हैव अ स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड सेल वॉल. जबकि जो ह्यूमन्स हैं वो एनिमल हैं, और एनिमल्स की बॉडी में, इनसाइड द एनिमल्स बॉडी सेल वॉल इज़ नॉट फाउंड. उनकी सेल वॉल नहीं पाई जाती है. एंड व्हाट डू द एंटीबायोटिक्स डू, एंटीबायोटिक्स स्टॉप्स द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या चीज़ नहीं बनने देगी, वो सेल वॉल, जिससे वो सेल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. एंड दैट्स वाई एंटीबायोटिक्स एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया. बट इनसे किसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ह्यूमंस के सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि ह्यूमंस के पास सेल वॉल नहीं है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अरे हमें नुकसान नहीं पहुंचता, देन ऑल्सो वेरियस पीपल से दैट कि इफ़ यू आर टेकिंग एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स देन इट विल डैमेज योर बॉडी. तो बेटा दैट थिंग इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है. आप अगर अधिक एंटीबायोटिक लोगे, छोटी छोटी बीमारी में अगर आप दवाइयाँ लोगे, तो आपकी बॉडी के अंदर जो WBC हैं, सोल्जर्स, आपको पता है ना, सोल्जर्स ऑफ योर बॉडी, WBC वाइट ब्लड सेल्स, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. और जो बैक्टीरिया होता है उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को, अगर किसी केमिकल का उनके ऊपर कंटिन्यूसली एक्सपोजर, यानी केमिकल उनके ऊपर कंटिन्यूसली डाला जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया उससे प्रिवेंट करने के कुछ केमिकल सिंथेसाइज कर लेते हैं, टेक्निक ढूंढ लेते हैं. सोचिए बैक्टीरिया भी इतना इंटेलिजेंट है. So that is the different thing. Bacteria is also intelligent here. But you should take antibiotics, but with the prescription of doctor and the condition, medical condition which requires that. खुद से नहीं लेना है कि थोड़ा सा भी फीवर आया and we have taken, या डॉक्टर है सजेस्टेड, या कंडीशन क्रिटिकल है तो ले सकते हैं उस केस में एंटीबायोटिक्स. So that was the case of antibiotics, and we have discussed the content of your class 9th also. तो 9th में जब आप आओगे तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए. If I will be the teacher, I'll just ask from you all. Who has discovered these antibiotics? The credit goes to Alexander Fleming. And now this story is very much interesting. I found it very much interesting. अब आपको भी अच्छी लगेगी. He was scientist. उन्होंने अपने जो लैब है, आपको पता है लैब तो देखा ही होगा आपने, उसमें बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे. मतलब वो कुछ न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, उससे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, फिर साइंटिस्ट उसको स्टडी करते हैं. तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे.
पर उन्होंने देखा सारे प्लेट्स पे तो बैक्टीरिया ग्रो किया है, बट एक प्लेट पे जहाँ पे एक मोल्ड फंगस होता है उसकी कॉलोनी है, वहाँ पे उसके आसपास बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहा है। तो इससे उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। देन फ्रॉम दैट ही हैज़ फाउंड दैट, उन्होंने सोचा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसा क्यों है। सो ही हैज़ फाउंड दैट सर्टेन केमिकल्स, कुछ ऐसा केमिकल है जो कि सिंथेसाइज किया जा रहा है फंजाई के थ्रू, जो कि विच इज़ नॉट अलाउिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। यानी केमिकल कैसा है, एंटी है, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके केस में कौन सा था, बैक्टीरिया। Nowadays various antibiotics are available for different kind of organism except for virus. वायरस के लिए antibiotics efficient नहीं है। And this also you will study in class 9th why antibiotics are not given in viral disease. So इसका आंसर भी सेम होगा, because antibiotics prevent the synthesis of cell wall and that viruses do not have cell wall. Apart from that viruses यूज़ द मशीनरी ऑफ होस्ट। मशीनरी ऑफ होस्ट मतलब जैसे ये वायरस है तो ये खुद से कुछ नहीं करेगा, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर एंटर करेगा, सेल के अंदर के जो उसका डीएनए है उससे जुड़ जाएगा और फिर डीएनए से अपना वर्क करवाएगा। जो वायरस अपना वर्क करवाना चाहेगा वो डीएनए से करवाएगा। सो दैट्स वाई इसका खुद की बॉडी नहीं वर्क करती है, जबकि अपना जीनोम जो इसके अंदर डीएनए या आरएनए है उसको रिलीज़ करेगा और होस्ट जिसकी बॉडी में इन्फेक्शन किया उसके डीएनए से जोड़ देगा और फिर उससे अपना वर्क करवाएगा। दैट्स वाई एंटीबायोटिक्स आर नॉट effective against viruses. They do not have their own machinery. इनका खुद का, इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, they do not have their own machinery. That means ये खुद की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, rather they use क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ होस्ट मशीनरी। होस्ट मशीनरी मतलब जो सेलुलर एक्टिविटीज़ है वो मशीनरी, मतलब ये नहीं यहाँ मशीन आ गई है। सो we were discussing about Alexander Fleming who has discovered antibiotics in year 1929. So he has seen that the colony of fungi is not allowing the growth of bacteria. So that's why these are against to it. That's why these are called antibiotics. Which mold was there? So he has just seen the mold penicillium. Penicillium. That's why the antibiotic which was derived was the penicillin. आपने नाम सुना होगा. That thing is here. We have done with this page also. If your class 8th science